اس کا تیسرا باب اور اس کی پہلی ورس سے پڑھو بیٹے. دا تھرڈ چیپٹر تیسرا باب پہلی آیت سے. ہاں جی پڑھو بیٹے. نبوکدنصر بادشاہ نے جو ایک سونے کی مورت بنوائی جس کی لمبائی 60 ہاتھ اور چوڑائی 6 ہاتھ تھی. نبوکدنصر بادشاہ. ہم نے بات شروع کی ہے بادشاہوں سے. بادشاہ جو حکمران ہے، جو سلطنت رکھتا ہے، جو اختیار رکھتا ہے، جس کا ہر ایک حکم پورے علاقے میں مانا جاتا ہے، جو بات وہ صادق کر دیتا ہے، جو بات وہ حکومت کے اندر رکھ دیتا ہے، وہ سب کے اوپر لاگو ہوتی ہے کہ اس کو مانے. اب یہ کیا کر رہا ہے؟ نبوکدنصر بادشاہ ایک قانون نافذ کر رہا ہے، اور اس نے کیا کیا ہے؟ بائبل کو سنے ذرا. جی پڑھو بیٹے. اور اسے تورا کے میدان صوبہ بابل میں نصب کیا. اسے تورا کے میدان سورہ بابل میں کیا کیا؟ اس مورت کو نصب کر دیا، کھڑا کر دیا. اور اس کے بعد اس نے سب سے پہلا کام کیا کیا؟ پڑھو بیٹے. تب نبوکدنصر بادشاہ نے لوگوں کو بھیجا کہ ناظموں اور حاکموں ٹھہرو. تب نبوکدنصر بادشاہ نے کیا کیا؟ اپنے لوگوں کو کن کے پاس بھیجا؟ سب سے پہلے کس کے پاس بھیجا جی؟ ناظموں کے پاس. ایک عہدہ ہے ناظم. اس نے اپنے نیچے جو کام کرنے والے عہدیدار تھے ان میں سے اس نے سب سے پہلے ناظم کو یہ پیغام بھیجا کہ ناظم تو اپنے سارے علاقے میں اس بات کو پھیلا دے کہ میں نے ایک مورت نصب کر دی ہے، اور سب اس کو کیا کرے؟ سجدہ کرے، اس کی عبادت کرے. پہلا بندہ اس نے کون سا منتخب کیا؟ دا سیکنڈ. حاکموں. اور دوسرا اس نے کون سا کیا؟ حاکم. حکم جاری کرنے والا، حکم صادق کرنے والا، بات کو پایا تکمیل تک لے جانے والا. حاکم میں وقت. اور دیکھو مصر میں کون حاکم وقت تھا؟ یوسف حاکم وقت بنا. دوسرا جو عہدیدار اس بادشاہ نے چنا، پہلا کون تھا؟ ناظم. دوسرا کون تھا؟ حاکم. تیسرا بڑھتے ہیں جی. اور سرداروں اور سرداروں اور قاضیوں اور قاضیوں اور خزانچیوں اور خزانچیوں اور مشریوں اور مشیروں. اور کن کو؟ مشاورت کرنے والے بادشاہ کے ساتھ. بادشاہ کے ساتھ ایک پوری لائن جڑی ہوتی ہے. اٹس مین قاضی، اٹس مین ناظم، اٹس مین سردار، اٹس مین حاکم، اٹس مین مفتی، یعنی علماء کرام. فلانا مفتی بڑا مشہور ہے. یہ سارا علم بائبل سے نکلا ہوا ہے. سارے نام بائبل سے نکلی ہوئی ہے. ہر ایک چیز بائبل سے نکلی ہوئی ہے. تو یہ ساری چیزیں ایک بادشاہ کے ساتھ جڑی ہوتی ہیں. یہ ساری ٹیم ہوتی ہے، اور پھر وہ ایک بادشاہ مکمل بنتا ہے. اس سارے عہدوں میں سے آج ہم ایک عہدے کو پٹ کریں گے، اوپر لے کر آئیں گے، اور اس کے اوپر ہم بائبل کو کھولیں گے. ہاللیلویا. اس میں سے جو بادشاہ کے ساتھ پوری ٹیم تھی، اس میں سے ہم ایک لفظ کو لے لیتے ہیں، اور وہ ہے مشیروں. کون سا لفظ ہے؟ مشاورت کرنے والے. ناظم پورے علاقے کو منظم کرتے ہیں، خزانچی پیسے جمع کرتے ہیں، مفتی علم رکھتے ہیں، اور علم کے زور کے اوپر وہ اپنے بادشاہ کو پروٹیکٹ کرتے ہیں کہ کوئی باہر سے صاحب علم آ کر ہمارے بادشاہ کو نیچا نہ. یہ پوری ٹیم اس کے ساتھ کام کرتی ہے. اس میں سے ایک عہدیدار کو آج ہم لے لیتے ہیں، اور وہ ہے مشیر. کیا ہے وہ؟ مشاورت کرنے دینے والا، مشاورت رکھنے والا. اپنے بادشاہ کو ہر طور سے وہ کیا کرنے والا؟ آگاہ کرنے والا کہ کہیں سے تیرا کوئی نقطہ تو لیک نہیں، کہیں سے تیری ریاست کے اندر کوئی داخل تو نہیں ہو جائے گا، کہیں سے تیری ریاست کے اندر کوئی ایسی پلٹن تو نہیں آ جائے گی، دشمن تو نہیں آ جائے گی. یہ بڑا کامیاب ترین مہرہ ہے سلطنت کے اندر، جسے ہم کیا کہتے ہیں؟
अगर हम इसके ऊपर आज बाइबल को खोलते हैं तो देखते हैं कि ये हमारी जिंदगी के अंदर क्या बरकत लेकर आती है। हालेलुया। हमने फर्स्ट स्टेप ले लिया कि बादशाह के साथ कौन से जरूरी ओहदे होते हैं। सभी ओहदे यहाँ डैनियल की किताब में नबूकदनेस्सर बादशाह की सल्तनत के साथ तरतीब से लिखे हुए हैं। इसीलिए हमने इस हवाले को पहले नंबर पर पुट किया। और दूसरे नंबर पर अगर हम बाइबल में देखते हैं तो बाइबल में पुराने अहदनामे में सबसे मशहूर बादशाह कौन था? तालियां इस बच्ची के लिए। द डेविड, जो खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मुकद्दस सैमुअल यस्सी का बेटा दाऊद, सबसे जोरावर बादशाह, सबसे ताकतवर बादशाह, सबसे ज्यादा और खुदा के फजल से बना हुआ बादशाह आज तक ना हुआ ना होगा, वो मुकद्दस दाऊद, जो कम उम्री में भी शेरों के जबड़े खोल देता था, जो कम उम्री में भी अपने बालों से बालुओं को, रीछों को जेर कर देगी। खुदा ने उसको ताकत दे रखी थी। बादशाह दाऊद, तो दाऊद बादशाह के दौरे हुकूमत में हम इस मशीर को आगे लेकर चलते हैं। आज हम बाइबल में से इस मशीर की बरकत को रिसीव करेंगे और इसका बाइबल में कहां कहां क्या क्या रोल है, इस इल्म को हम अपनी जिंदगी के ऊपर लेंगे। तो सेकंड हवाला हम बाइबल मुकद्दस में से ले लेते हैं, दूसरी तारीख, बल्कि फर्स्ट तवारीख, उसका 27 बाब और उसकी 32 आयत की तरफ हम बढ़ते हैं कि बाइबल मुकद्दस में मुकद्दस दाऊद बहुत जोरावर बादशाह, बरकत से बड़ा हुआ, खुदा के फजल से बड़ा हुआ दाऊद बादशाह, उसके निज़ाम हुकूमत में उसका मशीर कौन था और उसका नाम क्या था और उसके खानदान का पूरा हम देखेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। आज हमारा टॉपिक है खुदा के फजल से मशीर, जिसका मायने है मुशावरत करने वाला, मशवरा देने वाला और अपने मुशावरत से अपने बादशाह की सारी सल्तनत को प्रोटेक्ट करने वाला। जी पढ़ो बेटे जी, दोबारा वर्ष ले ले। पहली तवारीख 27 बाब और उसकी 32 आयत हम पढ़ेंगे। दाऊद बादशाह के घराने में हमने मशीर देखना है और उसका नाम देखना है, फिर हम आगे बाइबल में इस मशीर की तरफ बढ़ेंगे और कहां कहां पर इसका रोल है और क्या क्या तौर तरीके से खुदावंद का जलाल इस बंदे के साथ काम कर सकता है और कैसे हो सकता है। अभी नहीं, सबा को नहीं समझ लगी। यस, उसने सही बोला। पहली तवारीख उसका 27 बाब और उसकी 32 आयत। दाऊद का घराना पढ़ो बेटे, पढ़ो। और दाऊद का चचा यूतन, हाँ जी, बशीर और दानिशमंद और मुंशी था। मशीर और दानिशमंद और क्या था? तीनों खासियतें सी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। आम बंदा नहीं सीएगा। दानिशमंद होना बड़ा जरूरी, अक्लमंद मशीर का होना बड़ा जरूरी है, रूह और सच्चाई से भरा होना उसका बड़ा जरूरी है, क्योंकि वो एक सल्तनत के अंदर मुशावरत देता है, वो एक पूरे निजाम के अंदर अपने मशवरे देता है, वो बादशाह के पास जाता है, वो उसको बताता है ये बंदा तेरा किस तरह काम कर रहा है, ये बंदा तेरा किस तरह काम कर रहा है, ये बंदा तेरे साथ मुखलस है, ये बंदा तेरे साथ मुखलस नहीं, ये पहरेदार, ये सूबेदार, ये फौज का सिपाहीसलार, ये हर एक तरह से खजान, ये हर एक तरह से नाज़म, ये हर एक तरह से हर एक चीज को देखने वाला, और वो जाकर मुशावरत किससे करता है? बादशाह के साथ। और बादशाह दाऊद के खानदान में देखें कि उसका चचा योनतन मशीर था और दानिशमंद था और रूह से भरा हुआ था। आगे बढ़ो बेटे। और याएल बिन हुक्मोनी शहजादों के साथ रहता था। हाँ जी। और अकीफल बादशाह का मशीर था और हवासी और की बादशाह का दोस्त था। हाँ। और अखिल से नीचे यहूद पिन बनाया और अबीता थे और शाही फौज का सिपा सलार जो आप था। हाँ जी। इसमें एक लफ्ज अभी पढ़ा गया, वो है हनूनी इक्तफल। ये खास तौर से पुराना मुशीर था
बादशाह दाऊद का और बड़ी देर से उसके साथ काम कर रहा था और उसके साथ बरकत पा रहा था। और जैसे जैसे मुशावरत वो दाऊद को देता, जैसे जैसे मशवरे वो दाऊद को देता, वो खुदा की रूह से उनके साथ काम करता और बरकत पाता और दुश्मन को उनके घरों के अंदर घुसकर वो ज़ेर कर देता। ऐसी मुशावरत वो देता। इतना अक्लमंद था ये बादशाह दाऊद का मुशीर, जिसका नाम हलवाती अक्तिफल है। अक्तिफल उसका नाम है। और देखो अब सारा मामला आपने देख लिया। आपने देख लिया कि ये एक ओहदेदार होता है। आपने देख लिया कि बादशाह दाऊद के पास भी एक मशावरत करने वाला मुशीर है। मगर अब हम एक और बात की देखते हैं बाइबल के अंदर। अभी सलूम अभी यरूशलेम में दाखिल नहीं हो रहा, और जब उसको यरूशलेम के अंदर दाखिल होने की इजाजत मिल गई है तो ये दाऊद बादशाह का बेटा है। और देखो वो सर से लेकर पांव तक बेऐब है। वो हर साल अपना साल मड़वाता है और बड़ी बरकत दे रखी है। आओ हम इस करैक्टर को देखते हैं, इसी में से हमारा कलाम होकर गुजरेगा। आओ मेरे साथ बाइबल में से हम देखते हैं दूसरा शमूएल उसका 14 बाब और उसकी 25 आयत को हम पढ़ेंगे। सेकंड शमूएल उसका 14 बाब और उसकी 25 आयत में हमारे पास अभी एक करैक्टर आ गया है जो दाऊद बादशाह का बेटा है। और देखो उसके अंदर खुदा ने कुछ बरकत दे रखी है, खुदा ने उसके साथ कुछ जोर दे रखा है और वो इंतकाम की हालत में है। पढ़ो बेटे 14 की 25। हाँ पढ़ो, सुनिएगा जरा बाइबल को गौर से। द सेकंड शमूएल 14 बाब उसकी 25 आयत से पढ़ो बेटे। और सारे इस्राएल में कोई शख्स इबी सलूम की तरह उसके हुस्न के सबब से तारीफ के काबिल न था। पूरे इस्राएल में इस नौजवान जैसा खूबसूरत मर्द उस वक्त था। एडी बड़ी बरकत खुदा ने दी। आगे पढ़ो बेटे। क्योंकि उसके पाँव के तलवे से सर के चाल तक उसमें कोई ऐब न था। उसमें कोई भी ऐब नहीं था। ना वो शराब पीता, ना वो जुआ खेलता, ना वो किसी ऐसे गुनाह में बैठता जिससे उसकी बरकत जाया हो जाए, जिससे उसके बाप दाऊद का नाम खराब हो, जिससे उसके खानदान का नाम मिट्टी में मिल जाए। मगर इसके दिल के अंदर अब साजिश चल रही है। आगे बढ़ो इसी वाले से। हाँ यहाँ से छोड़ा था। और जब वो अपना सर मंडवाता था, हाँ क्योंकि हर साल के आखिर में हाँ? वो उसे मंडवाता था। हर साल के आखिर से जिਵੇਂ ਤੁਸੀਂ समझ लो कि आखिरी महीना होवे 11वां 12वां ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੋਵੇ तो हर साल ਦੇ ਵਿੱਚ अपना सिर मंडवाता ਸੀ। बरकत देखो इस बंदे को कितनी सारी। हाँ जी आगे बढ़े। इसलिए कि उसके बाल घने थे तो वो उनको मंडवाता था, तो अपने सर के बाल वजन में शाही तौल के मुताबिक 200 मस्काल के बराबर पाता था। वाह, वो बेच दिंदा सी अपने वाल और ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਰਕਮ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। और खुदा ने बरकत दे रखी थी कि साल ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਐਨੇ ਵਾਲ ਵੱਧਦੇ कि ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰੋਖਤ करके 200 मस्काल ਉਹਦੀ कीमत ਲੈਂਦਾ। मगर इसके दिल में बदी समा, ये रास्तबाज, ये खुदा के साथ चलने वाला ऐब बेऐब, इसके दिल में ये बात समा गई कि मैं अपने बाप दाऊद को पकड़, मैं उसको हिरासत में ले लूं, मैं उसकी जान का तालब हो जाऊं। और जैसे ही इसे मौका मिला कि ये यरूशलेम के अंदर दोबारा दाखिल हो जाए तो उसने काम क्या करना शुरू किया। जो कोई भी मदद के लिए बादशाह के पास आता तो बाहर दरवाजे पे खड़ा होकर उनको कहता, यार तेरा दुख ते बड़ा बड़ा है, गा तू सच्चा है यार, तेरे नाल कोई गैर इंसाफ हुआ, तेरे नाल कोई लगता कोई ऐसी गल हुई है कि जिहदी वजह तो तू बड़ा दुखी। अगर मैं काजी हुंदा ना इंसाफ करने वाला ते मैं तेरे हक में ना फैसला देंदा ते तू ना वो कर देंदा, सारा कुछ ही कर देंदा। यहाँ से वो कहता है कि यहाँ कि अगर मैं काजी होता ना तो मैं तेरे हक। इस बंदे का किरदार तुसी जरा पढ़ना है, फिर हम मुशीर पे वापस आएंगे। हाँ और इसी सलूम सवेरे उठकर फाटक के रास्ता के बराबर खड़ा हो ये 15 जाता। बाब। हाँ जी। और जब कोई ऐसा आदमी आता जिसका मुकदमा फैसला के लिए
बादशाह के पास जाने को होता तो हाँ। इब्बी सलूम उसे बुलाकर हाँ। पूछता कि तू किस शहर का है, हाँ। और वो कहता कि तेरे खादम इसराइल के फलाने कबीले का है। हाँ। फिर इब्बी सलूम उससे कहता, देख तेरी बातें तो ठीक और ਉਹ सच्ची ਕਹਿੰਦਾ हैं। ਤੇਰੀ ਗੱਲਾਂ ਸੱਚੀਆਂ ਨੇ, ਤੂੰ ਸਹੀ ਹੈਗਾ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਇਨਸਾਫ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਐਨੇ ਸਾਰੇ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਸਰ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਕਬੂਲੀਅਤ ਵਧਾਉਂਦਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰੇ, ਜਦੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦਬੋਚੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੋਣ। اور سب سے پہلا کام جو اس نے کیا وہ اس نے بادشاہ کے مشیر کو دبوچا۔ کیا کیا اس نے؟ مشیر، اس نے بادشاہ کی سلطنت کے اندر سب سے پہلی جو سن لگائی وہ اس نے کیا کی؟ جو کسی کو گرانے کے لیے کسی سلطنت کے اندر وہ پرانے وقت میں کی ہوتا سی سن لانا، کی ہوتا سی وہ سوراخ کر کے نا دیوار دے وچ تے چور گھسدے ہوندے سی، انہوں کہندے سن لگی ہے گھر دے وچ۔ اسی طرح کسی ملک دے وچ اگر سن لانی ہوندی سی تے او سب تو پہلے اودے عہدیداراں نوں خریددے سی۔ تے اینے کی کام کیتا؟ اینے بادشاہ داؤد دے اوتے حملہ کرنا سی تے سب تو پہلے اینے نہ اودے ناظم، نہ اودے حاکم، نہ اودے قاضی، نہ اودے مفتی، نہ اودے کسی اور عہدیدار نوں، بلکہ سب تو پہلے ابی سلوم کس کے پاس گیا؟ آئیے ہم اس بات کو بائبل میں سے دیکھ لیتے ہیں، اور یہی میں سے 15 باب کی طرح 12 آیت پڑھو بیٹے۔ سب سے پہلے ابی سلوم لوگوں کو اپنے ساتھ کر رہا ہے، ان کی اصلاح مشورت کر رہا ہے، ان کے دکھ سکھوں کو دیکھ رہا ہے، اپنی فوج بنا رہا ہے، اور اس کے بعد اس نے سب سے پہلے وہ پرانے اختفل جو داؤد کا مشیر تھا اس کے ساتھ اس نے کیا کیا؟ پڑھو بیٹے۔ اور ابی سلوم نے قربانیاں گزرانتے وقت جلونی اکتیفل کو جو داؤد کا مشیر تھا اس کے شہر جلوہ سے بلوایا، اس کے شہر جلوہ سے اس کو بلوایا تاکہ وہ اس کے ساتھ مل جائے اور وہ اس کو مشاورت کرے، وہ اس کو ایسے ایسے مشورے دے۔ ہاں جی آگے پڑھو۔ یہ بڑی سازش تھی، یہ بہت بڑی سازش تھی، ایک بہت بڑا پلان ہو رہا ہے، ایک بہت بڑی سن لگائی جا رہی ہے، ایک بہت بڑا کام کرنے کو جا رہا ہے، ایک بہت بڑی طاقت کٹھی ہو رہی ہے، اور طاقت اس کے خلاف کٹھی ہو رہی ہے جو خدا کے آگے سجدہ کرنے والا ہے۔ اور داؤد زمین کے اوپر جھک گیا اور اپنے قاتل مطلق خدا کو کہتا ہے، اے خدا اختفال کی ساری سوچیں بدل جائیں اور تیرا پاک کلام کام کرے اور اسے کوئی بھی مشورہ نہ دے سکے، اور تیرا جلال ان کی زندگیوں کے ساتھ کام کرے۔ ایسا ہی ہوا جب یہ مشاورت دینے کے لیے یہ مشیر بنا ابی سلوم کا، اور دیکھو خدا نے داؤد کی دعا کو سنا، اور دیکھو آگے ہم پڑھتے ہیں تو بائبل میں لفظ بہ لفظ لکھا ہوا ہے کہ خدا نے داؤد کی اس دعا کو سنا اور اس کے سارے مشورے، اس کی ساری مشاورت تبدیل ہو گئی، اور خدا نے داؤد کو سرفراز کیا، جلال اس کا اس کے ساتھ کام کیا۔ کوئی بھی ایسا مشاورت جو بدی سے تعلق رکھتا ہے، کوئی بھی ایسی سوچ جو بدی کو جنم دیتی ہے، کوئی بھی ایسے کام جو آپ دل میں بدی رکھ کے کسی کے لیے کرتے ہیں تو وہ کبھی بھی پورا مشاورت اپنی نیک رکھی، اپنی زندگی کے اندر مثبت سوچوں کو لے کر۔ ابی سلوم اس کے گھرانے کو اگر بائبل میں دیکھتے ہیں تو اس کی بیوی کیا کرتی تھی؟ وہ مشاورت، وہ ایسی مشیر بنی اپنی اولاد کے لیے کہ اس کو غلط راستہ دکھایا، لکھا ہوا بائبل کے اندر، تو وہ بھی کامیاب نہ ہو سکی۔ مشاورت زندگی کے اندر تازگی لے کر آتی ہے اور زندگی کے اندر رونق کو لے کر آتی ہے، اس کا پاک نام کام کرتا ہے، اس کا جلال آپ کی زندگیوں کے ساتھ کام کرتا ہے اور ہمیشہ کرتا رہے گا۔ ہاللیلویا۔ نیا اہتمام، ایک بابرکت مشیر کو دیکھ لیتے ہیں، امتیہ کا رہنے والا غالباً، جس مشیر کی طرف اب ہم پڑھتے ہیں۔ آج اس بائبل مقدس میں سے اس لفظ کو ذرا خوبصورتی سے ہم لے لیتے ہیں۔ مرکز
15 बाब 43 ऐसे मुकद्दस मरकज की मार्फत लिखी गई अंजील मुकद्दस 15 बाब और 43 ऐसे हम पढ़ते हैं। ये भी एक शाही औहदेदार है और ये काम क्या कर रहा है ये भी एक मुशीर। जी पढ़ो बेटे। और मतिया का रहने वाला और मतिया का रहने वाला यूसुफ आया, और यूसुफ आया जो इज्जतदार मशीर और खुद भी खुदा की बादशाही का मुंतजिर था। जो इज्जतदार क्या था, औहदा इसका क्या है, जो इज्जतदार मशीर था और खुदा की बादशाही का क्या था। पढ़ो जी कि इन्हें काम की कीता। और उसने जुर्रत से पिलातुस के पास जाकर उसने जुर्रत की, उसने कहा कि मैं कोई आम इंसान नहीं हूँ, मैं मशीर हूँ, मैं बादशाह से तलक रखता हूँ, मेरा एक औहदा है, मेरा एक नाम है। मत्तिया का रहने वाला यूसुफ नामी एक मशीर था और उसने जाकर जुर्रत कर पिलातुस के पास चला गया। किसी की जुर्रत नहीं पड़ रही थी कि वो पिलातुस के पास जाए। मकसद क्या था, पढ़ो बेटे। पिलातुस के पास जाकर यीशु की लाश मांगी। यीशु मसीह की मांगी, ये मशीर से मुशावरत देने वाला, मत्तिया का रहने वाला, इसका नाम यूसुफ था और इसने जुर्रत कर अपने औहदे को बरकरार रखा। ये नहीं डरा किसी से, इसने किसी की तरफ नहीं देखा, इसने रुपए की तरफ नहीं देखा, इसने किसी और तरफ नहीं देखा, बल्कि बाइबल में लिखा हुआ है कि ये खुदा की रास्तबाजी का क्या था, मुंतजर थी। मनना सी खुदा उनके वादे मनना सी, ओंदा जलाल उसके साथ काम करता था। ये बादशाहों के बादशाह की तरफ बढ़ रहा है और औहदा इसके पास भी क्या है, मुशावरत देने वाले का। और इसने नहीं सोचा कि अब मेरे साथ क्या होगा, बल्कि इसने कहा कि नहीं, मैं जाऊंगा और मैं जाकर खुदा के नाम से मैं इस फर्ज को अदा करूंगा और मैं पिलातुस से यीशु मसीह की लाश को मांगूंगा। और उसने जब देखा कि कोई बड़ा औहदेदार मेरे पास आ गया है जो मुशीर है, तो उसने कोई भी बात नहीं की और उस लाश यीशु मसीह की मत्तिया कहने वाले यूसुफ को हाथ उठा दी। हालेलुया। अब हम देख लेते हैं कि खुदा का काम उसके बंदों के जरिए होता है। किसके जरिए होता है, उसके बंदों के जरिए। और उसका जलाल बड़ी कसरत से काम करता है और कोई भी ऐसा नाम नहीं जो खुदा के नाम से बड़ा हो और कोई भी ऐसी बात नहीं जो उसके जलाल से बड़ी हो। तो आओ हम पुराने अहदनामे में चलते हैं जसाया नबी के सहीफे के पास, जिसकी 9 बाब की 16 आयत को देखना हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि पुराने अहदनामे में खुदावंद यीशु मसीह को अलकाब दिए गए। क्या दिए गए थे, लक़ब की जमा है। अगर किसी का कोई चीज़ मशहूर हो जाए तो वो उसका लक़ब बन जाता है। जैसे कहते हैं कि फलां शख्स बहुत बड़ा आलम है, तो उसे नाम की बजाय आलम कहना शुरू कर देते हैं। इसी तरह खुदा ने जसाया नबी के दिल में ये बात डाली और उसने जो लफ्ज़ लिखे, जो तौलद हुआ, उसके जो अलकाब लिखे, उसमें हमने देखना है। हमारा यहीं पे आज आखिरी हवाला ये होगा। हवाले तो यर्मिया और 2-3 और हैं, मगर क्योंकि प्रस्तिश का टाइम जो है वो थोड़ा बड़ा, इसलिए मैं मैसेज को थोड़ा करीब लेकर आऊँगा और इसको शॉर्ट कर दूँगा। आखिरी हवाला जसाया नबी का सहीफा 9 बाब और उसकी 6 ऐसे हम बाइबल को पढ़ेंगे। पढ़ो बेटे। इसलिए हमारे लिए एक लड़का तवल्लुद हुआ। जसाया नबी के सहीफे में ये बात बरसों पहले लिखी गई। और देखो, जिसकी लाश को लेने के लिए मुशीर जा रहा है पिलातुस के पास, ये बहुत बड़ी बाइबल की हिकमत है, ये बहुत बड़ा राज है। मुशीर मुशावरत देने वाला, मुशावरत करने वाला। और देखो, इस कलाम को आप सुनो, यीशु मसीह के अलकाब को आप सुन लो
और देखो हमारे लिए एक लड़का मखसूस हुआ और मुंतखब हमारे लिए ठहरा दिया गया, पाक कर दिया गया, हमारे लिए बरकत का सबब, हमारे लिए मुनज्जी, हमारे लिए हिकमत, हमारे लिए बेऐब बरा, हमारे लिए हर एक कुर्बानी और हर एक गुनाह का कफारा देने वाला। देखो वो बेऐब बरा जो जहां के गुनाह उठा लिए जाता है। पढ़ो बेटे। और हमको एक बेटा बख्शा गया, और हमको एक क्या बख्शा गया? बेटा। और मुशावरत कर लो खुदा के साथ, जुड़ जाओ उसकी बादशाही के साथ, जुड़ जाओ उसके पाक कलाम के वादों के साथ, जुड़ जाओ उसके रस्तों के साथ, क्योंकि पाक कलाम में लिखा हुआ है कि वो अल्फा ओमेगा अव्वल और आखिर है। वो मुशावरत करता बेटा त्यानू एक की अता करता पिया, एक बेटा अता कर रहा है, एक लड़का दौलत कर रहा है, एक बड़ी वड्डी बरकत दी जा रही है ते ओदे विच जिहड़े अलकाब दिते जांदे वो भी आप सुन ले। पढ़ो बेटे। और सल्तनत उसके कंधे पर होगी। सल्तनत किसी बादशाह, पहला हवाला मैंने डायनियल 3 की 3 से पढ़ा, पहली वर्ष बादशाहत, ये सारा निजाम बादशाहत के ऊपर मुनज़्ज़म होता है, जिसके अंदर ये सारे औहदे होते हैं। और बादशाहत किसके कंधों पर होगी? बादशाहत किसके कंधों पर होगी? जोरदार तालियां यीशु के लिए। उसके कंधों पर होगी। आगे बढ़ेगी। और उसका नाम अजीब मशीर। और उसका नाम क्या है जी? अजीब मशीर। ऐसा मशीर, ऐसे अजीब तौर से मुशावरत करने वाला, ऐसे अजीब तौर से काम करने वाला। तो अगर वो कहता है कि तू आंखें पाले तो अंधा क्या करता है? अगर वो कहता है कि ऐ लंगड़े तू उठ और चल, अपनी चाल पर उठा, तो वैसा ही होता है। और अगर ये मुशावरत करता है अपने बादशाह के साथ, अगर ये उसके पाक कलाम की मुशावरत करता है, अगर उसके नूर को ज़मीन पर दिखाता है, अगर उसके फजल को ठहरा देता है पानियों के ऊपर, तो वो मसीहा चलता और दुनिया बरकत पाती उसके जलाल से। और ये यशायाह 9 की 6 में कहलाया गया अजीब मुशीर, खुदाए कादर, अब्दियत का बाप और सलामती का हालेलुया, खुदावन यीशु मसीह के नाम पे ये अल्फाज अजीब मुशीर, ये अजीब तौर से मुशावरत जिंदगी के साथ करने वाला, अजीब तौर से काम, बादशाही निजाम इसमें दाखिल, बादशाही कुदरत इसमें दाखिल है। और इसके जो बाकी अलकाब हैं वो भी बहुत बड़ी ताकत रखते हैं अपने अंदर। अभी हमने यशायाह के इस बात को देखा कि मुशावरत, मुशीर क्या होता है, किस तौर से वो जिंदगी के अंदर काम करता है। इसीलिए खुदा ने हमारे लिए एक अजीब मुशीर ठहरा दिया। हम कितने बाबरकत हैं, हम कितने खुदा से मोहब्बत पाने वाले हैं, हम कितने उसके बरगजीदा बन सकते हैं, हम कितने उससे फजल पा सकते हैं, हम किससे उससे रूह से बढ़ सकते हैं अगर हम सच्चाई से चले। अभी सलून की तरह नहीं, अपने दिल के अंदर बदी न रखें, अपनी संगत को खराब न करें, अपने इलाके को खराब न करें, अपने लोगों को खराब न करें, अपने घराने को खराब न करें, अपने कलीसिया को खराब न करें, बल्कि ऐसे मुशीर बने जो बाइबल की दलील से वाबस्ता, ऐसे लोग हम बने जिसमें मोहब्बत दाखिल हो, ऐसी रूहें हम खुदा के सामने लेकर आए जिनके अंदर मोहब्बत, यगानियत और खुदा के साथ चलने की पूरी पूरी लगन हो, जो रूहें खुदा से डरने वाली हों, जो खुदा के ताबे हों, और हम खुदा से बरकत पाएं और कसरत की बरकत पाएं, क्योंकि हमारे लिए एक लड़का दौलत हुआ है, किसी गैर कौम के लिए नहीं, किसी और कबीले के लिए नहीं, किसी और संकलत के लिए नहीं, और हमारे लिए अजीब तौर से मुशावरत करने वाला खुदा की दानी हाथ है, जहाँ से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत करने को खुदा बना।